Hello everyone, welcome to Neutron. So today in this session we are going to do RC plus parajumbles. Okay, and this is the second session in the combo series. Okay, so इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे and there are 5 questions and then we'll try to solve all those 5 questions and we'll discuss it thoroughly. Okay, and then we'll move on to the 2 sets of parajumbles that has been provided at the end of the session, and in those parajumbles we will also try to solve those parajumbles accordingly and we'll try to figure out what is the right way to solve the parajumbles. Okay, so without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, so this reading comprehension is all about a author. Okay, what he encounters in his life. Okay, and what he is going through. Okay, तो जो ऑथर है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, ठीक है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को इस पैसेज में डिस्क्राइब करता है. ठीक है, और इस पैसेज में उसका जो स्टार्टिंग का 2 पैराग्राफ है उसमें ये डिस्कस किया गया है कि ही इज एन राइटर एंड व्हेन ही एंटर्स अ होटल ही फाइंड्स दैट सम पीपल रिकॉग्नाइज हिम एंड सम डोंट. Okay, and then a boy comes to his rescue. Okay, and he asks him to sign his recent book, his latest book. Okay, so that is how this passage starts. Okay, and then he talks about that how he had a dream to live his life. Okay, and he wanted to dedicate his life as a full-time writer. Okay, he wanted to live independently and as a full-time writer, and that was the part of his dream. Okay, and that is the thing that he has been doing for almost most of his adult life. Okay, he did not want any riches, no houses, no cars, no computers. Okay, but he wanted what was independence. Okay, and then the passage talk about that what was the reason why he chose this place. Okay, and which place did he choose? He plays Mussoorie. Okay, that is in the Doab. Okay, so why did he choose that place? He chose that place because of several reasons. Because it suited him, first. Second, it was a very familiar territory to him, and the third was that it was not too far from Delhi. Okay, and why is this Delhi being mentioned over here? Because his publishers were in Delhi. Okay, so it was an easy, it was a very accessible place for him. Okay, where he can stay in the Mussoorie. He can write his stories, he can write whatever he want. Okay, and at the same time Delhi was not too far, so he could easily get access to his publishers. Okay, okay, now the second page, it talks about that he won the time for leisure, books, nature, love and friendship. Okay, so he got all the time for leisure, for books, for nature, for love and friendship while being an author. Okay, and what he says next is that not everything falls neatly into place. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर चीज जो इंसान चाहता है वो उसको नहीं मिलता है लाइफ में. ठीक है, हर चीज उसको नहीं मिल सकता. ठीक है, 80% मिल सकता है, 70% मिल सकता है, बट 100% कभी भी नहीं मिल सकता. ठीक है, वो जिस तरीके से अपना लाइफ जीना चाहता है वो 100% उस तरीके से लाइफ अपना नहीं जी सकता है. ओके, okay, and he considered himself as the most imperfect specimen of humanity. Okay, he considered himself as the most imperfect specimen of humanity. Okay, and then it talks about some incidences that he is talking about, some of the incidences that happened while staying there. Okay, so what are those incidents? For the first incident was that 2 people drove off with a mattress rolled back up on the luggage rack. Okay, and when the manager of the hotel realized, then he called the police and they were stopped, and the car was stopped and the police took possession of those mattresses. And when the police stopped them, then the owner of the car said that the driver was involved in the theft. Okay, and what the driver said, that you had asked me to pick up 2 mattresses and now you are blaming me for stealing just one. Okay, so this is a funny incident that he encounters. Okay, so he recounts those time. Okay, the next incident was that there were few people who went to that place, to that hotel. Okay,
and they were a group of jolly beer guzzling young men, and they vacated the room. Okay, and when they vacated the room, the housekeeper went inside to clean the room, and when she opened the cupboard, she found a dead body, and that dead body tumbled out on top of her. Okay, so that was another incident, okay, that is being talked about. Okay, and in a different hotel, there was also one incident that a box bed was found stuffed with a decaying corpse. Okay, it means that the box bed was not opened for a very long period of time. Okay, and the dead body had decayed. Okay, so that is another incident that is being talked about. Okay, okay, and what it says that both cases were unsolved. Okay, and it was unsolved. Okay, and then there is one more incident that he recounts is a young man from Haryana was stabbed to death by one of his companions, and they left the body in the land or cemetery. Okay, but they left so many clues behind that they were caught a few days later. Okay, so that was one incident. Okay, so of course that hilly place is a nice place to live. It is a peaceful place to live. Okay, but at times occasionally some crimes do happen over there. Okay, and there was also one incident where an old lady is found strangled in a bed, or a failed business who hangs himself in a bathroom. So all these kinds of incidents happen there regularly. Okay, why? Because अगर आपको कोई क्राइम करना है और अगर आपको उससे बचना है, ठीक है, तो लोग ऐसा जगह चूज करते हैं जहाँ पे लोग कम आते जाते हैं, ठीक है, जो खाली हो, जो सुनसान हो। ठीक है, तो वैसा जगह हमें कहाँ मिल सकता है? कोई बिजी सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो नहीं मिल सकता है, वो आपको हिल स्टेशन पे ही मिल सकता है। ठीक है, वैसा अगर कोई क्राइम करना चाहता है। ठीक है, सो दैट इज all the experience that is he is being talking about here. Okay, but there is some positive parts, positive sides of living in a hill station also. Okay, like he gets clean air, clean mountain air. Okay, breathtaking scenery, and he occasionally spirits the bottle where he just occasionally spirits of the bottle variety, having done wonders for the outlook on life. Okay, so that is all being talked about here. Okay, okay, so there are other incidents too. Okay, some good incidents too. Okay, so that is all what he is talking about here. Okay, so now let us move on to the question and answer. Okay, so what is the first question? The first question is what is the author's view towards his own life. ठीक है, तो ऑथर का क्या व्यू था अपने लाइफ के प्रति, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। ही इज प्रीटी रिलैक्स्ड अबाउट हिज लाइफ। ओके, सो ये सही है क्या? हो सकता है कि हमें कंफ्यूजन हो कि हाँ ऐसा ही तो बोल रहा है, बिकॉज वो एक मस्त मौला जिंदगी जी रहा है। ठीक है, बहुत ही रिलैक्स्ड है। ठीक है, बट ही इज नॉट रिलैक्स्ड अबाउट हिज लाइफ। ओके, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे क्योंकि he has not gone there to relax, he has gone there to work because that place suits him. Okay, so he is not relaxed about his life, ये तो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? he is pretty satisfied by his life। ठीक है, हाँ यही तो बात कर रहा है कि he is pretty satisfied by his life। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन ये है पैराग्राफ में कि अगर कोई इंसान जो है अपने लाइफ का मोस्ट ऑफ द ड्रीम रियलाइज कर लेता है, ठीक है, सो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। ठीक है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड he says that most of the things he wanted to do in his life he has already done it. Okay, and there are some other things that he wants to do in the life and there is still time. Okay, ऐसा नहीं है कि वो मरने वाला है और वो आगे अपने ड्रीम्स को रियलाइज नहीं कर सकता। Okay, so this is your right answer, but we'll also check the other options as well. So what does it, the option C says he is concerned about his life. No, he is nowhere concerned about his life, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। Okay, next क्या है? he is thinking about what the future holds for him and wants to forget the past. ऐसा कहीं बात नहीं है। ठीक है, वो तो चिंतित तो है नहीं अपने फ्यूचर को लेके, ऐसा तो बात नहीं है। एंड ऐसा कुछ इंसिडेंट्स भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो अपने पास्ट को फॉरगेट करना चाहे, तो ये भी बात नहीं है, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ही इज लिविंग इन द पास्ट। नहीं, पास्ट में लिव नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ओके, ही इज लिविंग हिज ड्रीम लाइफ। ओके, सो दिस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज आफ्टर द बियर गजलिंग young men vacated their room, the housekeeper was shocked by। तो housekeeper क्या देख के शॉक हो गई? after the beer guzzling young men vacated their room, तो उसने जो housekeeper है उसने क्या फाइंड आउट किया जब वो साफ करने गई थी? सो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। नॉट फाइंडिंग द कारपेट, नहीं, ये जो कारपेट जो नहीं मिला ये तो दूसरा इंसिडेंस था, वो तो आपका
ओनर का था एंड ड्राइवर का इंसिडेंस, ठीक है, जो ये इसको ब्लेम कर रहा है और ये इसको ब्लेम कर रहा है, सो दैट वाज एन फनी इंसिडेंट। सो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। फाइंडिंग अ बॉक्स, ठीक है, नहीं, फाइंडिंग अ बॉक्स वाज एन डिफरेंट इंसिडेंस इन अ डिफरेंट होटल, ओके, ये मेंशन्ड है, ये डिफरेंट होटल में इंसिडेंस हुआ था। पहले ये इंसिडेंस को डिस्क्राइब किया गया था जहाँ पे बियर गजलिंग मैन जो है वेकेट करके जाते हैं रूम में, ठीक है, एंड दे लेफ्ट अ डेड बॉडी इन द कबर्ड, ओके। तो इसके साथ ही एक और बात किया गया था कि एक डिफरेंट होटल में कुछ दूसरा इंसिडेंस देखने को मिला, और वो क्या था कि they found a decaying corpse in a box. So this is also not the right answer. Next क्या है, by finding a dead body in the cupboard which tumbled out on top of her. Yes, this is your right answer. ठीक है, यही हुआ था, ठीक है। So ये all of these or none of this तो वैसे भी नहीं होगा, so option C is your right answer. Okay, so moving on to the next question. The question says, why does the author choose to stay in Mussoorie? Okay, what are the reasons why he chose to stay in Mussoorie? क्यों उसको पसंद था मसूरी, उसने क्यों डिसाइड किया स्टे करने के लिए मसूरी में, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं। It suited him in many ways, ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्या है, It was near to Doon which was familiar to him, ठीक है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्या है, It was not too far from Delhi and his publishers, ठीक है, तो उसके पब्लिशर्स कहाँ थे, वो दिल्ली में ही रहते थे, एंड दैट वाज नॉट टू फार, तो ये भी बात सही है। तो इसमें तो सारी बातें सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, बिकॉज इट सेज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता है, सो योर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट हैज द ऑथर बीन डूइंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ। तो पूछ रहा है कि ऑथर जो है अपने मोस्ट ऑफ द एडल्ट लाइफ में उसने क्या किया था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा तो नहीं है कि कहीं डिफरेंट प्लेसेस ट्रैवल कर रहा है, ऐसा बात नहीं कर रहा, वो तो बोल रहा है कि वो मसूरी में ही स्टे कर रहा है बिकॉज ही लाइक्स दैट प्लेस, ओके, और उसके जो रीजन है वो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ये जो थर्ड क्वेश्चन में है इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो दैट ऑल दिस थ्री वेयर द रीजंस व्हाई ही वांटेड टू स्टे इन दैट प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिविंग इंडिपेंडेंटली एज अ फुल टाइम राइटर, ठीक है, ये बात तो बात किया गया है कि ही वांटेड टू वर्क इंडिपेंडेंटली, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करना चाहता था, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता था, अपने लिए काम करना चाहता था, एंड ही वांटेड टू बी अ फुल टाइम राइटर एंड दैट इज व्हाट ही डिड। सो ये ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है, बट हम इसके ऑप्शन सी, डी एंड ई को भी चेक कर लेते हैं। कलेक्टिंग रिचेस फॉर फ्यूचर, यहाँ पे तो बात किया गया है स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में बात किया गया है दैट ही डिड नॉट वांट एनी रिचेस, ओके, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट क्या है, मार्वेलिंग एट द नेचर, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नेचर के लिए ही गया था वहां पे, ठीक है, वो अपना काम भी करने के लिए गया था, ओके। नेक्स्ट क्या है, लिविंग इन द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, ओके, तो लिविंग इन द प्लेस ऑफ हिज चॉइस ये तो ठीक है, मगर ये पूरी तरीके से सही नहीं है, सिर्फ वो रहना ही नहीं चाहता था ऐसा बात नहीं, ठीक है, वहां पे फुल टाइम एज अ फुल टाइम राइटर भी वहां पे काम करना चाहता था, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट ही इज मेंशन्ड इन द ऑप्शन बी पार्ट, ओके। So moving on to the last question. So what is the question? What does the author want to imply by saying not everything falls in place? ठीक है, तो ये जो बात किया गया है आपका not everything falls in place, इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है, ऑथर इस बात को बोल के क्या इंप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है। So it says the person cannot have all the things he wants from life, तो बोल रहा है कि एक इंसान जो है हर चीज नहीं पा सकता है अपने लाइफ में जो वो चाहता है, ठीक है, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, इसका मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो इसको हम बाकी के ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ पर्सन कैन नॉट विन टाइम फॉर लेजर, उसके पास लेजर के लिए टाइम नहीं है, बुक के लिए टाइम नहीं है, नेचर के लिए टाइम है, एंड लव एट वंस, ठीक है। तो बोल रहा है कि अ पर्सन कैन नॉट विन टाइम फॉर लेजर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बुक्स, नेचर, लव, ठीक है। तो ये भी बात नहीं है, यहाँ पे तो बोल रहा है कि he got time for all of these things, so ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ इज लाइक अ जंबल एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, नहीं, ऐसा बात नहीं कर रहा है, ओके, सो दिस इज योर रॉन्ग आंसर, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ कैन बी क्रूएल एट टाइम्स, नहीं, ऐसा भी बात नहीं कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो योर रॉन्ग आंसर, ओके। सो ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होता है और इसके पांचों क्वेश्चन को हमने बहुत ही थॉरली हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि अगर कोई आंसर सही है तो वो क्यों सही है, और अगर कोई आंसर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द पैराजंबल्स, ठीक है।
तो ये पैराजम्बल का पहला सेट है, तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, इसको पहले समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके, तो क्या बोल रहा है, गॉड हैज मैनेज्ड द अमेजिंग फीट ऑफ बीइंग वर्शिप्ड एंड बीइंग इनविजिबल एट द सेम टाइम। ठीक है, तो बोल रहा है कि गॉड जो है उन्होंने एक अमेजिंग फीट अचीव किया है। ठीक है, और वो क्या है, बीइंग वर्शिप्ड एंड बीइंग इनविजिबल एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग फीट है जो गॉड ने अचीव किया है। ठीक है, तो ये गॉड के बारे में बात है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्या है, मिलियंस ऑफ पीपल माइट डिस्क्राइब हिम as a white beard father figure sitting on a throne in the sky but none could claim to be an eyewitness। ठीक है, तो बोल रहा है कि लाखों लोग उनको किस तरीके से देखते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, एज अ व्हाइट बियर्ड फादर फिगर। ठीक है, एक फादर फिगर की तरह देखते हैं जिनके लंबे लंबे दाढ़ियां हैं। ठीक है, एंड ही इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन इन द स्काई। ओके, मगर उसको कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ मैंने भगवान को देखा है। नोबडी कैन क्लेम टू बी एन आई विटनेस। ठीक है, किसी ने उनको अपने निगाहों से नहीं देखा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, बस ये सिर्फ वो उनको इस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन में क्या है, ऑल्दो इट डजंट सीम पॉसिबल टू ऑफर अ सिंगल फैक्ट अबाउट द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी किसको बोला गया है, गॉड को बोला गया है। ठीक है, दैट वुड होल्ड अप इन कोर्ट ऑफ लॉ somehow the vast majority of people believe in God, as many as 96% according to some polls। तो कहीं पोल कराया गया होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या देखा गया है कि 96% लोग जो हैं वो गॉड में बिलीव करते हैं। इसका मतलब है कि 4% ऐसे भी लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ा गैप है। ठीक है, और इसी गैप के बारे में क्या बोल रहा है कि दिस रिवील्स अ ह्यूज गैप। ठीक है, तो ये दिस क्या है, दिस बोला गया है पोल को। ठीक है, तो दिस पोल रिवील्स अ ह्यूज गैप बिटवीन बिलीफ एंड व्हाट वी कॉल एवरीडे रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ई में वी नीड टू हील दिस गैप। तो बोल रहा है कि हमें इस गैप को हील करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसको, तो इस पैराजम्बल में आपका जो है ये सेंट्रल थीम क्या है, तो यहाँ पे बात किया गया है बेसिकली किसके बारे में, गॉड के बारे में। ठीक है, ऑलमाइटी गॉड के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो गॉड के बारे में कहाँ कहाँ डिस्कस किया गया है, आपका फर्स्ट सेंटेंस में बात किया गया है। ठीक है, आपका सेकंड सेंटेंस में भी बात किया गया है, उनको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में भी बात किया गया है, फोर्थ में नहीं बात किया गया है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ में भी बात नहीं किया गया। तो फोर्थ एंड फिफ्थ तो चल रहा है कि टोटल जो है इसमें गॉड के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ए बी सी में, मगर डी और ई में गॉड के बारे में बात नहीं किया गया। ठीक है, वहां पे गैप के बारे में बात किया गया और कैसे उस गैप को हम हील कर सकते हैं इसके बारे में बात किया गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो ए बी सी या सी में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ऑल्दो है, तो ये ऑल्दो है, तो ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कुछ तो बात करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोल रहा है मिलियंस ऑफ पीपल माइट डिस्क्राइब हिम, तो ये हिम कौन है इसको हमें पता नहीं है, तो ये हिम कौन है, ये गॉड के बारे में बात किया। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हिम का यूज किया गया है। ठीक है, गॉड के लिए, तो यही आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, और इसमें बताया गया है कि जो गॉड है उनको हम किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और वो हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप के बारे में डी और ई में बात किया गया है। ठीक है, और जो ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया गया है कि ये गैप जो है वो क्या है, कितना है, या यहाँ पे जो बात किया गया 96% का, तो ये गैप जो है यहाँ पे हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है और यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है कि ये जो गैप है 96% का है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड होगा स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, एंड देन ये हमें डी और ई भी बच रहा है, तो डी और ई में तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये जो ई है आपका फिफ्थ स्टेटमेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि वी नीड टू हील द गैप। ठीक है, हमारा जरूरत है कि हम इस गैप को हील करें, इस गैप को हम कम करें। ठीक है, तो ये आपका 50 होगा और इसके पहले जो है हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये जो पोल है, ये पोल को बोला गया है कि दिस रिवील्स, तो क्या रिवील्स, दिस पोल रिवील्स। ठीक है, दैट अ ह्यूज गैप बिटवीन बिलीफ एंड व्हाट वी कॉल एवरीडे रियलिटी। ठीक है, तो इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है, तो ये हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस। तो इस पैराजम्बल का खास बात क्या था कि इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना पड़ा, इट वाज ऑलरेडी इन अ सीक्वेंस्ड मैनर। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ए बी सी डी ही रहेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराजम्बल।
ओके, तो ये सेकंड पैराजम्बल है, इसमें क्या क्या बात हो रहा है पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, सेंट्रल थीम डिसाइड कर लेते हैं एंड देन विल सी व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो बोल रहा है द रिजल्ट वाज ऑल द मोर एस्टोनिशिंग, all the more astonishing when it was discovered that the person doing the praying didn't have to know the patient personally or even know their names। ठीक है, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हो रहा है, एक तो इल पेशेंट से रिलेटेड बात हो रहा है, कहीं ना कहीं पेशेंट से बारे में बात हो रहा है और आपका प्रेइंग के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो प्रे किसके बारे में, किसके लिए करते हैं हम, पेशेंट्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि रिजल्ट, तो रिजल्ट मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ पोल किया गया होगा या कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है। सीरियसली इल पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स वेर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, सम बीइंग प्रेड फॉर व्हाइल अदर्स वेर नॉट। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हॉस्पिटल है उसमें क्या देखा गया कि जो सीरियसली इल पेशेंट्स है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप था जिनके लिए लोग प्रे कर रहे थे एंड दूसरा ग्रुप वो था जिनके लिए लोग प्रे नहीं कर रहे थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल दैट देयर इज अ रीचेबल प्लेस बियॉन्ड मटेरियल रियलिटी एंड दैट इज प्रेयर। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ऐसा रीचेबल प्लेस है दैट इज बियॉन्ड मटेरियल रियलिटी। ठीक है, इट इज बियॉन्ड मटेरियल रियलिटी एंड दैट इज प्रेयर, मतलब कि जो रियलिटी है उससे उठकर उससे ऊपर क्या है, एक ऐसा प्लेस है जिसको हम बोलते हैं प्रेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेयर जो है मटेरियल रियलिटी से कहीं ना कहीं ऊपर है। ठीक है, ओके, इट हैज इट्स ओन वैल्यू, इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। ठीक है, इन आवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन ऑल केसेस, ऑल केसेस मतलब ये जो दो केसेस के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इन ऑल केसेस बेस्ट मेडिकल केयर वाज स्टिल गिवन एंड येट इट बिकेम एविडेंट दैट प्रेड फॉर ग्रुप सीम टू रिकवर बेटर। ठीक है, तो बोला गया कि सारे केसेस में क्या किया गया, सबको बेस्ट मेडिकल केयर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और उसके बावजूद हमें क्या देखने को मिला कि जो ग्रुप था जिनके लिए लोग प्रे कर रहे थे दे सीम टू रिकवर बेटर, उनमें रिकवरी जल्दी देखने को मिल रही थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, बिगनिंग मोर देन 20 years ago researchers devised experiments to try to verify whether prayer had any efficacy। ठीक है, तो 20 साल पहले लोगों ने क्या किया, एक रिसर्च किया। ठीक है, बाय डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड बाय डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट दे वर ट्राइंग टू वेरीफाई वेदर प्रेयर हैड एनी एफिकेसी, क्या प्रेयर सचमुच में कारगर है या नहीं है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, ओके, तो अब हमें पता चल रहा है कि ये जो टोटल जो पैसेज है आपका किससे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अराउंड प्रेयर। ठीक है, तो कोई ऐसा लाइन हमें, कोई ऐसा सेंटेंस हमें चूज करना है जहां पे प्रेयर के बारे में अच्छे से बताया गया है, खुल के बात किया गया। ठीक है, डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें प्रेयर से रिलेटेड तो सब में करीब करीब सब में बात किया ही गया। ठीक है, ओके, मगर इसमें हमें देखना है कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रेयर के बारे में जहां डिस्क्राइब किया रहेगा वही पहला सेंटेंस होगा। ठीक है, जिसके में उसको डिस्क्राइब किया गया है कि प्रेयर एक्चुअल क्या है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट क्या है ये तो हमें पता नहीं है किस चीज का रिजल्ट है। अगर इसको हम अलग करके देखते हैं, एक वो स्टेटमेंट को सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट मान के चलते हैं तो हमें पता नहीं है कि ये रिजल्ट किस चीज के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, सीरियसली इल पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, तो ये तो इट वाज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो ये तो हमें पता है कि देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड 20 years ago। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया होगा कि दो ग्रुप्स को डिवाइड किया गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये ई से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो ऑप्शन ई है इससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये बी वाला। ठीक है, तो ये तो बाद में आता है। ठीक है, मगर अभी हमें ये बताना बाकी है कि प्रेयर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और डी में भी हमें क्या दिख रहा है, इन ऑल केसेस। ठीक है, तो ये भी पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है, तो ये बी डी और ई तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और ए भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बात कर लिया कि रिजल्ट क्या है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो बचते हैं हम एक ही ऑप्शन के साथ जो कि है हमारा ऑप्शन सी, और यही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बताया प्रेयर का स्थान क्या है, इट इज समथिंग दैट इज a place, a reachable place that is beyond material reality। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेयर कहते हैं। ठीक है, सो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेयर किसको बोलते हैं, वैसे प्लेस को बोलते हैं दैट इज बियॉन्ड मटेरियल रियलिटी। तो इसमें बताया गया है कि प्रेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको हम कैसे समझते हैं। ठीक है, सो सी विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ओके, अब तो यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि जो है इसमें एक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में रिलेटेड बात किया गया है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्यों किया गया है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में ये देखने का कोशिश किया गया है कि क्या प्रेयर सचमुच में कारगर है या नहीं। ठीक है, वेदर इट इज
where prayer had any efficacy, ठीक है। तो इसी चीज से तो रिलेटेड बात है ना कि प्रेयर को पहले बात किया गया कि प्रेयर क्या है, एंड देन दे हैड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ओके, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब एक्सपेरिमेंट कर लिया, मगर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया वो उसके बारे में नॉलेज तो देना पड़ेगा कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन बी में बात किया गया है, ठीक है, कि उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, एंड वन ग्रुप वाज बीइंग प्रेड फॉर एंड द अदर वाज नॉट, ठीक है। तो ऐसा किया गया था। तो ऐसा जब ग्रुप में डिवाइड किया गया था और ऐसा किया जा रहा था, तो उसमें क्या देखा गया कि इन ऑल केसेस, जितने भी केसेस थे उनमें बेस्ट मेडिकल केयर दिया गया था, ठीक है। मगर जिन लोगों के लिए लोग प्रे कर रहे थे, ठीक है, दे सीम टू रिकवर बेटर, ठीक है। तो ये हमारा डी और हमारा जो ऑप्शन ए है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फर्स्ट कौन आ सकता है, ठीक है। तो आखिर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट कौन आएगा? तो इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा पार्ट है जिसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या है? यहाँ पे लिखा है ऑल द मोर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द रिजल्ट वाज ऑल द मोर एस्टोनिशिंग। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट पहले कुछ हमें मिला, ठीक है, और उसके अलावा कुछ हमें और देखने को मिला, कुछ हमारा और ऑब्जर्वेशन था उस रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो ये डेफिनेटली हमारा बाद में आएगा, ना कि पहले आएगा, ठीक है। तो हमें जो पहला जो रिजल्ट मिला था वो क्या था कि द प्रेड फॉर ग्रुप सीम टू रिकवर बेटर, ये हमें रिजल्ट मिला था, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फोर्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। और ये फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द मोर, ठीक है। और ये ऑल द मोर का मतलब क्या है कि जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ उसके अलावा हमें और क्या देखने को मिला कि जिन लोगों के लिए लोग प्रे कर रहे थे वो उन पेशेंट्स को पर्सनली जानते भी नहीं थे, और यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं पता था, मगर इसके बावजूद क्या देखा गया कि रिकवरी उसमें अच्छा हुआ, ठीक है। सो हमारा ये पैराजंबल का सेट खत्म हो गया। इसका हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, क्या है? इट इज CE B D एंड A, ठीक है। तो ये इसका आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने पैराजंबल्स को हम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ESIC exam, okay। So that is all from my side. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.